Vivekananda says, or I may say, Naren used to say, but Vivekananda says, philosophy is the best medicine for the mind. Let's try and understand each word. Naren is the person's name. So he takes birth and he dies. Every person. Vivekananda is an eternal reality. Vivek means realization of the truth. Established in truth is called Vivek. And in Viveka, there is nothing else but Ananda. Viveka is Ananda. There is no incompleteness in Viveka. Viveka is complete. Purnamadaha Purnamidam. Purnat Purnam Udachyate. From completeness, from infinitude, has come this world, which is equally complete, equally infinite. From infinite is born infinite. From infinite is created infinite. When nothing else is possible, from infinite you cannot give rise to incompleteness. So from completeness is born completeness. That means God is complete, this is also complete. This means this person, this you, each one of you is born complete because you are born out of completeness. So Vivek is that completeness, taste of that completeness, realization of that completeness is called Vivek. And that's nothing but Ananda, Sat Chit Ananda. So Vivekananda is an eternal reality. He is not a person who takes birth and dies. It is Ad Sach, Jugad Sach, Hai bhi Sach, Hosi bhi Sach. It is always the same. Hare Ram, Vaheguru. And that's what is Ram, that's what is Krishna, that's what is Allah, and that's what is Nanak. Nanak is not only the name of a person, Nanak is a reality. Guru is a reality. Because it is Kalen Anavachedat. It is Kalatit. It's not within the realm of time. Vivekananda. And he says, he comes and gives a message. He says, philosophy is the best medicine for the mind. Try and understand this sentence. Medicine is required when there is a disease. Otherwise, why medicine? So what is the disease? Mind. He said, he did not say disease of the mind. Medicine is the disease, philosophy is the medicine for the disease of the mind. No. He said, philosophy is the best medicine for the mind. So mind is a disease. Mind is a disease. Take it from me. Mind is a disease. And you rely so much on the mind. All the time, mind, mind, mind. Mind is never mind. Never mind. Don't mind. Don't indulge with mind. Never mind. Then you will be couldn't care less. Try and understand the words. Couldn't care less. You will be very careful, but you would not be bothered about anything. You will be never mind. Everything is never mind. Never mind. Never mind. Mind is disease.
And all the time you say, मेरा मन ऐसा क्यों है, मेरा मन ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा मन क्यों नहीं संभलता, मेरे मन को कैसे ठीक करूं. Never mind. And how will it happen? Philosophy is the best medicine for the mind. Philosophy will do what? It will create that never mindness in you. Anybody who has tasted Viveka Ananda, the essence of Naren, would not mind, would not mind. He would become no mind. No mind. No mind is called in Hindi what? When will there be world peace? That's a question which politicians often sit and discuss. Politicians. But what is world peace? Aman. Aman means never mind. Do not mind. Do not mind your mind. Never mind. Everything, never mind. Then what will happen? All is well. Then you will become the three idiots. All is well. The three idiots. All is well. Then you will all the time in a state of ananda. All is well. But how will it happen? Vivekananda tells us what? Philosophy. And now we need to understand what is philosophy. First we understood what is Vivekananda. Then we understood what is mind. It's a disease. So you finally need to never mind. Do not mind. You are all the time troubled by mind. So you have to reach a state where you do not mind. How will it happen? By philosophy. What is philosophy? What is theosophy? Study of God. Theosophy. Sophy means to understand, to experience, to know. And any subject you can put in front of it, it will become study of that subject. So philosophy. What is phil? It's love. Love. So philosophy. And what is theosophy? Theo means God. God means love. So when you experience God, God is ununderstandable. So you at least understand some little word, love. When you experience love, when you experience love, when you experience love, it's called philosophy. And how would you experience love sitting alone? Somebody is required. Somebody is required. Without that somebody, how would you experience love? So, Krishna. Brahman comes as Krishna. That somebody. Krishna is somebody. Who's your beloved? So you and your beloved. When you sit in front of each other, तो सामने बैठा रहे, मैं देखती रहूं तुझे रात दिन. सामने बैठा रहे, कृष्णा के सामने बैठे रहो. Experience love, isn't it? प्रेम को experience करो. So जब आपको प्रेम experience होना शुरू हो जाए, प्रेम की समझ आनी शुरू हो जाए, उसको फिलॉसफी बोलेंगे ना. प्रेम की समझ आनी शुरू हो जाए, फिलॉसफी. Experience of love. इक्षतेर्न अशब्दम. The highest knowledge is आपको किसी चीज की
तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसी चीज जो इटर्नल हो, जो पकड़ना चाहते हो, पता है कि पकड़ी नहीं जा सकती मगर पकड़ना चाहते, वो इच्छा उत्पन्न हो जाए। That desire wakes up, and then you completely belong to that whom you want to catch. तो प्रेम की समझ आनी शुरू हो जाएगी। प्रेम क्या होता है, प्रेम की समझ आनी शुरू हो जाएगी। दैट्स फिलॉसफी। फिर स्पिरिचुअलिटी क्या है? एटलीस्ट प्रेम की समझ तो आनी शुरू हो, दैट प्रेम मीन्स यू completely belong to that thing or that person or that entity, your ईश्वर, इष्ट, गुरु। गुरुत्वाकर्षण, एक आकर्षण तो पैदा हो, उसके बिना तो दौर्मनस्य है। दौर्मनस्य इज संस्कृत वर्ड फॉर बोर्डम। अदरवाइज तो बोर हो रहे हो, सारा दिन बोर हो रहे हो, ढूंढते हो इधर उधर कोई चीज, दिल लग जाए, ऐसे ही किसी को मिलने चले जाते हैं, चलो पिक्चर ही देख लेते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं, बात तो फिर भी नहीं बनती। मगर अगर फिलॉसफी बन जाए, अगर किसी चीज में मन लग जाए और हर वक्त यही लगे कि तुम सामने बैठे रहो और मैं देखती रहूं रात दिन, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिलॉसफी हो गई। तो फिर प्रेम की समझ आनी शुरू हो गई, प्रेम एक्सपीरियंस शुरू हो गया कि प्रेम होता क्या है। प्रेम के अंदर जो सारे भाव हैं, दसों के दसों भाव एक्सपीरियंस होंगे, दसों के दसों रस एक्सपीरियंस होंगे। श्रृंगार रस हाईएस्ट, उससे भी परे शांत रस, सब कुछ एक्सपीरियंस होगा, पूर्णता एक्सपीरियंस होगी। जिसमें से आप निकले हो वो एक्सपीरियंस होगा। सो बार बार कहा जा रहा है कि प्रेम का एक्सपीरियंस इज फिलॉसफी। उसके बाद क्या होगा? प्रेम का पहले एक्सपीरियंस तो कर लो, उसके बाद क्या होगा? प्रेम में समझ भी उत्पन्न हो जाएगी। प्रेम की समझ, उसके बाद प्रेम में समझ, आप समझदार हो जाओगे, आपको अपनी पूर्णता का आप बोध हो जाएगा। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। मोहब्बत पहले, फिर प्यार। प्यार क्या होता है? वननेस। फिर आप कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको पूर्णम का एक्सपीरियंस हो जाए कि मैं पूर्ण हूं, अपूर्ण नहीं हूं, अभाव नहीं है किसी भी चीज का, अविनव, अविनव भाव है, अविना भाव। इनसेपरेबल हूं मैं अपने बिलवेड से, वो कहीं दूर नहीं है, वो मेरे ही अंदर है। फिर वो अभिनव फील होगा। अभिनव मतलब हर वक्त, एवर न्यू रस, दैट रस विच इज एवर न्यू, दैट टेस्ट विच इज never stale, all the time it is, that's called ananda. Every moment there will be rus in your life. So philosophy is the best medicine for the mind. Mind एक disease है, ये तो no mind ही होना पड़ेगा। You will have to cease to be the mind. जब तक आप मन हो तब तक आप बीमार हो, तब तक अमन संभव नहीं। सो पहले मोहब्बत होगी, पहले कोई इष्ट बनेगा आपका, ईश्वर होगा कोई, फिर धीरे धीरे आपको अपना ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होंगे। पहले एम्प्टीनेस फील तो हो
कि मुझे ये चीज चाहिए। अमावस्या के बाद ही तो नवरात्रे आएंगे ना। नवरात्रे शुरू कैसे होते? पहले अमावस्या होती है, उसके बाद नवरात्रे। वो माता किसी पहाड़ों में नहीं पैदा होती, वो आपके दिल में पैदा होती। वो कॉन्शियसनेस है आप ही की, जो जागना चाहती है। पर जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। जब तक जीरो ही नहीं एक्सपीरियंस होगा, जब तक एम्प्टीनेस एक्सपीरियंस नहीं होगी। और वो कैसे होगी? वो गुरु तत्व कोई विवेकानंद ही तो जगाएगा ना, जो बोलेगा फिलॉसफी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द माइंड। कोई विवेकानंदा आएगा जो आपको जगाएगा, और वो एम्प्टीनेस फिर पार्वती का रूप लेंगी। पत्थर में से पैदा होगी कॉन्शियसनेस। पत्थर कौन है? हम सब जड़ हैं। जब तक पार्वती का जन्म नहीं होता, जब तक कॉन्शियसनेस नहीं जगती, तब तक हम जड़ हैं, पत्थर हैं, पर्वत राज हैं। अपने आप को राजा तो समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, मगर हैं तो पर्वत राज ही ना, है तो पत्थर ही। जब तक कॉन्शियसनेस ही नहीं जगी, नवरात्रे शुरू ही नहीं हुए। सो नवरात्रे शुरू होंगे, पार्वती शैलपुत्री का जन्म होगा, और वो कहेगी मुझे तो ब्रह्मचारिणी बनना है, मुझे तो ब्रह्म ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना ब्रह्म चाहिए, अपना ब्रह्म, मेरा ईश्वर। मुझे अपने ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। जब ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तो ब्रह्मचारिणी का रूप ले लेंगी पार्वती। और फिर तो अंदर घंटियां बजेंगी, घंटियां बजेंगी, चंद्र घंटा का रूप के दर्शन हो जाएंगे। एंड आपको पूर्णता एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएगी। आभास होगा। आभास होता है थोड़ा सा, किन का एक जिन जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना। कुष्मांडा के दर्शन होंगे। कुष्मांडा, इस कलश के अंदर, इस कलश, ये बॉडी कलश है, एक घड़ा है, जड़ है, पर्वत है, इसके अंदर कुष्मांडा, इसके अंदर पूर्णता का जन्म होगा, आभास होगा। फिर स्कंद माता के दर्शन होंगे। आप ही के अंदर स्कंद जन्म लेंगे, आप ही के अंदर। चाहे उनको स्कंद बोलिए या गणेश बोलिए, आप ही के अंदर एक बीज will germinate and take the form of wisdom, your own son, your true child, your true son. स्कंद माता के दर्शन होंगे, फिर आप एक ब्लेसिंग बन जाएंगे दुनिया के लिए। स्कंद माता के बाद कात्यायनी का रूप लेंगी। सो ये नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे ऐसे ही लड्डू पेड़े खाने से नहीं होते। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फास्ट कर लिया, वो कर लिया, ये सब तो ऐसे नाटक है। वेल, all rituals are meaningful if they are laced with a भाव। अगर भाव ही का अभाव है, तो फिर कहाँ संभावना है पूर्णमासी की? शरद पूर्णिमा की रात कैसे आएगी? शरद पूर्णिमा तो रासलीला है ना, उसमें तो राधा कृष्ण एक हो जाएंगे। ये सब संभव है, बस किसी को जगाना है आपको। बस आप जागना शुरू तो होइए। बिकम रिसेप्टिव, रिसेप्टिव, बिकम अ रिसेप्टिकल, बिकम अ रिसेप्टिकल। तो हाथ पानी से भर जाएंगे। वर्षा तो हो ही रही है, वर्षा तो इटर्नल है। पूर्णता से पूर्णता का ही उदच्यते,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कहीं कुछ इनकम्प्लीटनेस नहीं है, कोई अभाव नहीं है। बिना भाव पहले उत्पन्न तो हो। बिना भाव क्या होते हैं? मिस तो करो किसी को, तो फिर ही तो अविना भाव का एक्सपीरियंस होगा कि मैं तो कभी अलग था ही नहीं तुमसे, मैं तो हमेशा ही तुम्हारा ही रूप रहा। तो वो विवेकानंद है। तब नरेन के अंदर विवेकानंद जन्म लेंगे। और हम ही हैं नरेन। हम कोई अलग नहीं है किसी बुद्ध से, हम ही बुद्ध हैं। और पहले किसी बुद्ध से प्रेम करो तो फिर बुद्ध हो जाओगे। पहले कंप्लीटनेस से प्रेम करो, फिर कंप्लीट हो जाओगे। मोहब्बत ही न जो समझे, वो सालिम प्यार क्या जाने। कंप्लीटनेस इज प्यार, इनकम्प्लीटनेस इज नॉट प्यार। कंप्लीट हो जाना, जो आप ऑलरेडी हो। हरे राम। हरे कृष्ण।